कि जब तक क्लास चलती रहेगी, जब तक मैं बोलता रहूंगा, तब तक आप अपना माइक म्यूट करके रखना, सो दैट कि डिस्टर्बेंस ना हो। अगर किसी को कोई डाउट है वो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है, और या फिर अगर आपको टाइप करना है चैट बॉक्स में, अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप चैट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक का कोई पोर्शन ओवर होने के बाद मैं आपको पूछूंगा कि आपको किसी को अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आल्सो आस्क मी। Before I begin, I just want to know that whether you all would be comfortable with English or Hindi, so that I know that the medium of communication is not affecting anyone at all. If everyone is okay with English, okay, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में रखते हैं बोथ। अगर किसी को कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पार्ट ऑफ इट एनीवेयर, just raise the concern and I will address that. Okay? All right. I guess अभी टाइम हो गया है and we should begin before waiting for others to join. अगर कोई नेक्स्ट आता है तो we'll address them. All right. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम yes. Sir, just one query. Sir, this is the first class of reasoning. Since I have joined today only. This is the first class of reasoning that I'm taking. So don't worry. This is for SSC. Yes. Okay. Yes. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Yes. No problem. Yes. So yes. Sir, for a bank also first class. Yes, मैं सिलेबस के हिसाब से बता दूंगा, बिकॉज ये जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं ये दोनों जगह आती है, बैंक में भी आती हैं और एसएससी में भी आती है। दोनों में वेटेज कितना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना मार्क्स के लिए आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, दिस इज जस्ट नॉट फॉर एसएससी, दिस टॉपिक इज आल्सो फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन एज वेल। मैं बता दूंगा दोनों में जो एक्चुअली सिमिलर वेटेज है, मैं बता दूंगा कि वेटेज किसमें कितना क्वेश्चन आता है, कितना मार्क आता है, और आप इजीली कैसे इसको स्कोर कर सकते हो विदाउट लूजिंग मच ऑफ योर टाइम। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। ठीक है, मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर देता हूं, अगर किसी को दिखाई नहीं देता है तो प्लीज टेल मी। ये स्लाइड सबको दिखाई दे रही है? Everyone can see the slides, right? Okay, if anyone cannot see the slides, please let me know so that I will adjust accordingly. ठीक है, and before we begin, let me just give you my mail ID in case you have any query post the classes or anything. You can always reach me by this ID. Sir, your screen is not showing. Screen is not showing? No. Is it for everybody, or is it just for one or two person that the screen is not visible? Can others confirm? It is visible. It is visible, right? So okay. now it's visible. Visible, right? All right, all right, all right. Let me just correct my handwriting a bit so that you guys can understand. Okay, so let me just write this once again. Okay, that is my official mail ID. If you have any queries or any doubts of not just of syllogism, which we are going to do today, any other doubts regarding reasoning or mathematics, you can just ask me, reach me there and ask me. Okay, now that is sorted, let me just rub it. Okay, so ये जो आज का टॉपिक है, इसका नाम है, the name is syllogism. What does it mean? What does it mean? It basically, in basic dictionary meaning, it means that there are two statements given and we have to logically deduce an inference which should be logically correct. Not that this may or may not be correct. We do not have to find the exception. हमें exception find नहीं करने, हमें एक universal चीज निकालनी है जो given statements हैं, उससे एक लॉजिकली डिड्यूस करना है। बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स, लेट मी टेल यू इसमें क्या क्या वेटेजेस हैं, कौन से एग्जाम के लिए। ठीक है,
ठीक है, जो आपका एसएससी का एग्जाम होगा उसमें ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और बैंकिंग में भी सिमिलर है एक्चुअली, बैंक में भी इसके 2 to 3 क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर वेटेज, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट you don't have to lose much of your time to solve this. You can easily solve this and save your time for other problems like say solving puzzles or comprehension, you know, उसमें पढ़ने में टाइम लगता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसमें यहाँ पे आप अपना टाइम बचाओगे, बस सिर्फ टाइम नहीं बचाओगे, ये फुल मार्क्स स्कोर भी करोगे। आई कैन अश्योर यू दैट अगर आज की जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं अगर आपको समझ में आ गई तो ये आप 5 से 5 या फिर 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आते हैं विद इन 1 मैक्सिमम 1.5 मिनट्स आप ये क्लियर कर लोगे और करेक्ट, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है। तो जब मैं whenever I am going through it and मुझे सबसे रेस्पॉन्स चाहिए, not just 1 or 2 people कि मैं अगर कोई क्वेश्चन करता हूँ कुछ करता हूँ तो मुझे सबसे रेस्पॉन्स चाहिए। ऐसे नहीं कि सब लोग एक साथ अनम्यूट करके बोलने लगो, नो, बट वन बाय वन कोई चैट में भेज सकता है या फिर कोई मुझे यहाँ पे अनम्यूट करके बोल सकता है, ठीक है। लेट्स बिगिन। सिलोजिज्म, जैसे मैंने इसका मतलब बता दिया दैट देयर विल बी 2 स्टेटमेंट्स गिवन, 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे एंड वी हैव टू डिड्यूस 1 लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम दोस 2। हाउ डज इट वर्क एग्जैक्टली, ठीक है। Let me just tell you what is the pattern of the questions. Okay, so there will be statements given and after that there will be conclusions written. Then आपको ऐसे usually options दिखेंगे, ये A B C D E, ये almost constant ही रहते हैं। अगर conclusion 1 सही है then you have to take it here, conclusion 2 सही है so option B। अगर कोई एक ठीक है बट यू कांट नो कि कौन सा सही है देन ऑप्शन सी। दोनों गलत हैं ऑप्शन डी, अगर दोनों सही हैं ऑप्शन ई। दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन, ठीक है। एक एग्जांपल बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स, जस्ट वन एग्जांपल सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली सिलोजिज्म मींस, ठीक है। सम एप्पल are mangoes, no mangoes is blood, only blood is heart। तो ये जो टर्म्स हैं आपको इसमें ध्यान देना होता है मोस्टली। some, no, only, let me just write it down here, okay। सबको विजिबल है, नहीं विजिबल है तो मुझे बताना। ये हमारे बेसिक हैं, all, some, no। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डू दीज टर्म्स मीन इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। लेट्स गो इनटू डाइव डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट, देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस, देन यू विल नो ऑल द आंसर्स। इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज टेल मी। नाउ लाइक आई टोल्ड यू there will be basic, some, all, no, these are basic। Only a few is equal to some। ये टर्म्स का मतलब पहले समझ जाओ so that it will be easier for you to understand the question itself। Only a few मतलब some। Only a few of my friends visited Agra। That means some of your friends visited Agra। कोई गलती नहीं है, राइट। तो ऐसी चीजों में कंफ्यूज मत होना, आपको बस इन तीनों में फोकस करना है। ये चीजें कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, मैं बता दूंगा एग्जांपल्स के साथ कि किसका मतलब क्या होता है, बट डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स, सम, ऑल, नो। ऑलराइट गाइस, यस, नो, मे बी, एनीथिंग, ताकि मुझे पता चले दैट आई एम एक्चुअली यस यस थैंक यू, ताकि मुझे पता चले कि you guys are listening, not sleeping down there, okay? So, okay, next slide. All right. Examples देखते हैं। So, एक बात बताओ, how many people are familiar with Venn diagrams?
वेन डायग्राम जब मैं बोलता हूं, कितने लोगों को समझ में आता है कि वेन डायग्राम का मतलब पता है? पीपल हु डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ वेन डायग्राम ओनली दे विल रेस्पॉन्ड. पीपल हु डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ वेन डायग्राम, लेट मी नो. कितनों को नहीं पता है वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? सर 11th-12th मैथमेटिक्स मेरा नहीं था सर. सर 11th-12th का मैथमेटिक्स आई हैवंट. Okay, no problem. वेन डायग्राम एक्चुअली 9th 10th को स्टैंडर्ड में भी होता है. कोई भी आइडिया नहीं है वेन डायग्राम? सीबीएसई में नहीं था सर. सीबीएसई में नहीं था. तो 9th 10th में सीबीएसई में वेन डायग्राम नहीं था? नहीं मैम, नहीं था बिल्कुल नहीं. अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. यूनिटी था, वो सब था. कोई बात नहीं, अभी हम बहुत इजीली समझ जाएंगे, सो डोंट वरी. एक डायग्रामिकल रेफरेंस से हम बताएंगे. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड लेट मी नो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि अभी स्टेटमेंट से कैसे हम डिड्यूस करेंगे. चलो यहां पे समझते हैं. सम एक्टर्स आर सिंगर्स. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, सम मतलब एक्टर और सिंगर्स में दोनों में कुछ कॉमन है. ठीक है, सो ये हो गया एक्टर, ये हो गया आपका सिंगर. तो ये चीज जो आगे आपकी ये कॉमन है. तो ये ध्यान रखना, जब भी सम का आएगा आप ऐसे डायग्राम्स बनाओगे. ये ध्यान में इसलिए रखने के लिए बोल रहा हूं बिकॉज ये थोड़ा आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है. ठीक है, तो जब भी सम का आप देखोगे ऐसे लिखोगे. ये सबको क्लियर है? सम वाला डायग्राम अगर मैं अभी कुछ भी के लिए सम का स्टेटमेंट देता हूं तो यू ऑल वुड बी एबल टू डू द वेन डायग्राम. लेट्स कॉल दिस डायग्राम, नॉट इवन वेन डायग्राम, राइट? यस सर. परफेक्ट, वंडरफुल. लेट्स मूव ऑन. सम का सबको क्लियर है? यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जो डोंट वरी, ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. अगर आपको और डिटेल में इसको पढ़ना है या फिर ज्यादा एग्जांपल्स करने, सो दैट आई विल शेयर द स्लाइड्स विद यू एज वेल. डोंट वरी. ओके, नाउ सम का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया. अभी लेट्स ऑल. यहाँ पे ध्यान रखना, ऑल में लोग एक मिस्टेक जरूर करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान में रखना. जब भी ऑल का कॉन्सेप्ट आएगा आप क्या करोगे? ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स. तो ऑल सारे हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम नहीं है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हारमोनियम. ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स. अभी मैक्सिमम लोग क्या करेंगे इसके डायग्राम के लिए? ऐसे कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आई, बिकॉज सारे हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तो आ ही जाते हैं ना. बट नहीं, yes, ऐसा मत, यस, ऐसा मत करना. दैट इज द मिस्टेक पीपल डू. ऐसा मत करना. आप क्या करना, आप यहां से ऐसे निकालो एक, यहां से एक ऐसे निकालो एक, और इसको ऐसे करो. मतलब ये एक बड़ा सर्कल बन गया. ठीक है, ये एक बड़ा सर्कल बन गया. इसमें भी आप देख सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एच पूरा आ जाता है. दैट मीन्स कि ये जो हारमोनियम वाला पोर्शन है ये पूरा आई के अंदर आ जाता है. ये क्यों मैं ऐसे बना रहा हूं ये आपको बाद में समझ में आएगा, क्यों मैं पहले जैसा नहीं बना रहा हूं. ठीक है, बट जब भी ऑल का कॉन्सेप्ट आएगा आप डायग्राम ऐसे बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे. ठीक है, ऐसे नहीं बनाओगे, आप ऐसे बनाओगे. क्लियर है ये सबको? यस सर. ओके, ये क्यों बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सबको क्वेश्चंस में समझ में आएगा. ठीक है, हमने सम देख लिया, हमने अभी ऑल देख लिया. चलो नेक्स्ट बेसिक वाले में जाते हैं, सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट. ठीक है, नो. जब नो का स्टेटमेंट आता है दैट मीन्स कि आपको ऑलरेडी पता है. नो का स्टेटमेंट जब भी आता है आप अलग से बनाओगे. एज इन ये हो गया आपका डोर, और प्लीज एग्जाम में ध्यान में रखना डोर और डॉग है, इसको डी मत लिखते हैं ना, so that there will be you later you wouldn't know which is which. ठीक है, so ऐसे door, this is your dog, यहाँ इसके बीच में लाइन डालना और यहाँ पे क्रॉस डाल देना. दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है. जब भी नो की स्टेटमेंट आएगी, whenever there is any statement consisting of no, you will make the diagrams like this. No, in not any other way.
Believe me, you follow these basic simple steps, this problem will be over in a minute and you will be scoring 5 marks or 6 marks, जो भी weightage आता है, minimum 5 marks तो आएगा. Alright, so concept clear है अभी, sum, all और no का. Yes, मैं दोबारा एक just for the quick समरी एक बार फिर से तीनों का एक साथ कर देता हूं, ठीक है, और मैं जिसको नाम लेके पूछूंगा सिर्फ वही आंसर करेगा. क्लियर है? Yes, sir. All right. नाउ संदीप, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम से मुझे स्टेटमेंट बताओ. सर ये ऑल का स्टेटमेंट है. यस, मुझे स्टेटमेंट पूरा. वेरी गुड, ऑल का स्टेटमेंट आपने बता दिया. वेरी गुड, स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट मुझे बताओ. ऑल बॉल्स आर ब्लैक. वेरी गुड, वेरी गुड. ये ऑल का स्टेटमेंट है. ऑल ब्लैक्स आर बॉल नहीं है, ऑल बॉल्स आर ब्लैक. ये ऑल का. वेरी गुड. नेक्स्ट मैं जिसको बोलूंगा वही बोलेगा. ओके, प्रियंका. Sir, no dog is cat. नो डॉग इज कैट. वेरी गुड. ये हो गया हमारा नो का स्टेटमेंट. नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज शुभम. शुभम, okay, Shubham seems to be not here or probably can't hear us. Okay, we'll get back to that. Okay, Anirudh. Okay, मेरी आवाज आ रही है सबको या फिर सिर्फ इन्हीं दोनों को नहीं आ रही है? सर आ रही है आवाज. आ रही है, राइट अनिरुद्ध? यस सर, वो माइक ऑन करने में टाइम लगता है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. बताओ इसका जो थर्ड वाला जो डायग्राम. यस, some violin or music. some violin or music, or you can also say some music or violin, क्योंकि some है तो there is absolutely no problem, either way में हम बोल सकते हैं. ठीक है, वेरी गुड. चलो ये some है. तो अभी सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ऑल, नो और सम का, और अभी सब डायग्राम भी बना सकते हो. अगर ये कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, ये टॉपिक खत्म है और कुछ है ही नहीं है इस टॉपिक में. बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे बनाना है, कैसे करते हैं. तो कोई बात नहीं, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, सारी चीजें हम सीख जाएंगे. जस्ट गिव मी अ मिनट, ये मैं सारी चीजें रब कर देता हूं सो दैट कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे और एग्जांपल्स करना स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जांपल. ठीक है, ये सम नॉट में हम बाद में आते हैं, बिकॉज पहले जो बेसिक हमने सीखे हैं उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे, उसके बाद हम आते हैं. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आंसर करते हैं. ठीक है, यस. ये पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो स्टेटमेंट्स है, ऑल बसेस आर कार्स, सम बसेस आर ट्रक. कंक्लूजन दिया है, मुझे आप लोग बताओ कि ये कंक्लूजन में कौन सा सही है. सिर्फ चैटिंग में भेजना, कोई अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, चैटिंग में भेजना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. मतलब अगर कंक्लूजन 1 सही है या नहीं, कंक्लूजन 2 सही है या नहीं, मुझे बताओ. जो कॉन्सेप्ट मैंने हम बताए थे उसी कॉन्सेप्ट से फटाफट ड्रॉ करो एंड यू विल गेट टू नो. बहुत इजी. यस यस, कोई डाउट्स है? यस, पूछो. अनिरुद्ध ने बताया कि
ऑप्शन 2 मतलब अनिरुद्ध ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 सही है या फिर ऑप्शन 2 गलत है? ये जो स्टेटमेंट है मुझे बताओ कि At least some trucks are cars. अच्छा, ये बोल रहे हो कि आप ये ट्रू है बोल रहे हो आप। ओके, लेट्स सी, दिस इज वन ऑप्शन। प्रतिभा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर आंसर दे रहे हो? वो बोथ ट्रू के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्वेश्चन है या आपका आंसर है वो? अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो आप बोल रहे हो कि दोनों ट्रू है। लेट्स सी। मैं बस जानना चाहता हूं कि हम आंसर क्या क्या कर रहे हैं, सो दैट कि आई विल फाइंड आउट द probably the basic mistakes that you all would be doing, so that कि हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे आंसर्स पूछ रहा हूँ, ठीक है? 2 लोग तो है नहीं क्लास में। गाइस, एवरीवन एल्स? संदीप 1, ठीक है, संदीप ने बोला कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है। ओके, लेट्स सी बाकी लोग। शुभम इज स्टिल नॉट हियर, इज इट? शुभम, कैन यू हियर अस? ओके, ही कांट। ऑलराइट, ओके। विनीत, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है। 3 लोगों के आंसर्स आए मुझे। चलो ठीक है, इसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स सी। ऑल बसेस आर कार्स। गाइस, बैकग्राउंड नॉइजेस हैं, तो जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। सो ऑल बसेस आर कार्स, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया था, ये हो जाएगा आपका बस, ठीक है। फिर यहां से हम निकाल के ये कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा कार। ऑल बसेस आर कार हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है सम बसेस आर ट्रक्स। सम बसेस आर ट्रक्स। देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बनाया था, ठीक है। लेट्स सी नाउ, सम बसेस आर ट्रक्स, तो ये हो जाएगा आपका ट्रक। अभी चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कि नहीं। सम बसेस आर डेफिनेटली नॉट ट्रक्स। देखो, ये जो है बस और ट्रक का, ये कॉमन है, ठीक है। सम वाला तो हमें पता है, बाकियों का हमें नहीं पता है। यहां पे लिखा है लेकिन सम बसेस आर डेफिनेटली नॉट ट्रक्स। ये जो बोल रहे हैं, ये जो बाकी हैं, ये बोल रहे हैं कि ये वाले तो बिल्कुल है ही नहीं ट्रक, राइट। क्या ये सही होगा या गलत होगा? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है सम बसेस आर ट्रक्स, तो हमें पता है कि कुछ थोड़ा सा जो पोर्शन है, हमें स्टेटमेंट में ये गिवन नहीं है कि ऑल बसेस हैं कि नहीं है। गलत होगा। संदीप, वेरी गुड। क्यों? सर क्लियरली सम मेंशन किया हुआ कि सम बसेस ही सर ट्रक्स हैं। यस, ओके संदीप, आपका प्रॉब्ली आंसर सही है, बट प्रॉब्ली आप जिस तरह से बोल रहे हो, प्रॉब्ली शायद अंडरस्टैंडिंग में मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे जो लिखा है सम बसेस आर ट्रक्स, ये जो सम वाला पोर्शन है, ये जो कॉमन फैक्टर आता है, ये तो बस और ट्रक दोनों सेम है, ठीक है। हमें पूछा गया, अभी हमें पता करना है कि ये जो बाकी वाला जो बस का पोर्शन है, बाकी वाला जो बस का पोर्शन है, क्या ये ट्रक हो सकता है या नहीं, ये पूछा गया है। ये सर हो सकता है, राइट, हो सकता है, क्योंकि हो सकता है, ट्रक्स दिए हुआ है ना। एग्जैक्टली। तो बेसिकली बात ये है कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सम के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये जो डेफिनेटली बताया गया है, ये वर्ड यहाँ पे क्या कर रहे थे, पॉसिबली लिखा होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली लिखा गया है, तो ये गलत है। ये इसमें सबको समझ में आया ये? Yes, sir. Okay, very good. Next, at least some trucks are cars. Some trucks are cars. ये ट्रू है या नहीं है? क्योंकि कार पूरा देखो, कार यहाँ तक है। एग्जैक्टली, क्योंकि गलत है ना। मैं बता रहा हूँ क्या, नहीं मैं बता रहा हूँ, जो हमें चेक करना है कि कार और ट्रक में कोई कॉमन एरिया है क्या।
कार और ट्रक में कॉमन एरिया है क्या? ऑफ कोर्स है यार, ये some buses are. राइट। तो ये जो सम है ये बस भी है और कार भी है, क्योंकि सारे बस कार हैं, हमें पहले से बताया गया है, सारे बसेस कार्स हैं। तो ये जो यहाँ पे जो चीजें हैं ये बस भी है और ये कार भी है। दोबारा इसको करते हैं, डोंट वरी, दोबारा करते हैं। एक प्रॉब्लम में कितना भी टाइम लगेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ, ठीक है? की वर्ड्स को समझना, दोबारा मैं इसको बताता हूँ, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है। ऑल बसेस आर कार्स, चलो हम बनाते हैं इसको, ऑल बसेस आर कार्स, ठीक है। ये हो गया मेरा कार, सॉरी ये हो गया मेरा बस, यस, और ये हो गया मेरा, यहां से मैं कर रहा हूं, ये हो गया मेरा कार। समझ में आया यहाँ पे? ठीक है। अभी इस डायग्राम में हम जो अभी बनाएंगे सम बसेस आर ट्रक्स, मैं यहाँ पे क्यों बनाना चाहता हूँ? बिकॉज सम बसेस आर ट्रक्स, ये हो गया मेरा ट्रक। क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे भी बना सकता था, राइट? लेकिन मुझे, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि थोड़ा एरिया कार के अंदर जा रहा है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है, हम बस ट्रक और बस का डायरेक्ट रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है? जितना इंफॉर्मेशन गिवन है गाइस, सिर्फ उतने में ही डायग्राम बनाना है, दैट्स इट, और किसी चीज पे ध्यान नहीं रखना है, बस ये हो गया। अभी देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं एक बार यहाँ पे देख लो। यहाँ पे ट्रक भी है वहां पे ट्रक, यस सर, वहां पे बस भी है वहां पे बस, वहां पे कार भी है। दिख रहा है आपको वहां पे कार कैसे है? Yes, sir. क्योंकि some buses are cars. some buses are cars. All buses. Not some, all buses. Yes. sir. तो ये जो पोर्शन है ये ध्यान में रखना, ये ट्रक भी है, ये बस भी है, ये कार भी है, ये पोर्शन, ठीक है? अभी देखो, अभी आते हैं टॉपिक पे। सम बसेस आर डेफिनेटली नॉट ट्रक्स, ये तो चलो समझ में आ गया था हमें, डेफिनेटली है, वी कैन नॉट कंक्लूड इट, सो ये गलत हो गया, राइट? अभी सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, एट लीस्ट सम ट्रक्स आर कार्स। ये अभी सही होगा या गलत होगा? तो सही होगा सर, सही होगा, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रक्स हैं वो बसेस तो हैं ही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ के जो बसेस हैं वो कार भी हैं, थोड़े जो ट्रक्स हैं वो कार भी हैं। क्योंकि अगर आपको ये बस का हटा दो, बेसिकली सम का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना। अभी यहाँ पे काम करो, ट्रक लिखो, यहाँ पे लिखो कार, बीच में से अगर बस हटा भी देते हो तब भी ट्रक और कार का डायग्राम ऐसे ही तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट? अगर डायग्राम ऐसे बन रहा है दैट मीन्स कि सम ट्रक्स आर कार्स। ये बात समझ में आई या इसमें अभी भी डाउट है? सर ये ट्रक और कार का जो आपने बताया एक बार फिर से बता दीजिए। ट्रक और कार का, ठीक है, और बनाया जी, वेरी गुड, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है? ये देखो, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, ये डायग्राम को ना फिर से बना देता हूँ सो दैट कि पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ऑल बसेस आर कार्स, सी हियर, ऑल बसेस आर कार्स। पूरा इसके बाउंड्री के साथ ही मैं ले रहा हूं, मैं बाहर कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है, ये पूरा समझना, ये है कार। सर, यस प्लीज। सर जो इसमें हमारा फर्स्ट कंक्लूजन था
उसमें अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट, उसमें गिवन है कि सम बसेस आर ट्रक्स, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सम बसेस आर नॉट ट्रक्स। नहीं, मैं बताता हूँ उस लॉजिक से आप कहाँ गलत चले जाओगे, मैं बताता हूँ। बिकॉज ये कौन से सम है हमें नहीं पता, राइट? ये जो सम बसेस लिखा गया है ये कौन से सम है? तो हमें पता करना है कि क्या ऐसे बसेस एग्जिस्टिंग हैं जो कि ट्रक है ही नहीं, जो कि हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। वो भी कहां से? इस स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट से हमें पता चला है कि सम बसेस ट्रक्स हैं। सम है, थोड़े जो बस हैं वो ट्रक्स हैं, बाकी सम है कि नहीं हमें नहीं पता। ये स्टेटमेंट से हमें नहीं पता है। स्टेटमेंट में ना ये लिखा है कि ऑल बसेस आर ट्रक्स, ना स्टेटमेंट में ये लिखा है कि सम को छोड़ के बाकी जो सम है वो ट्रक्स हैं या नहीं है, वो इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। ओके सर। यस, तो इसीलिए हमें, क्योंकि मैं ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट पे दोबारा फिर से आऊंगा, पहले जो सेकंड वाला है ये, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का डाउट इसमें है, ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है गाइस, देखो अगर ये वाले डायग्राम से आपको दिक्कत हो रही है तो मैं वो डायग्राम बनाता हूं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी में आपको शायद दिक्कत हो सकता है। चलो मान लो इसको ऐसे डायग्राम बना देता हूं। ये बस है, ये आपका कार है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है दैट सम बसेस आर ट्रक्स टू। सो यहाँ पे मैं काम करता हूं, यहाँ पे ये हो गया मेरा ट्रक। ये डायग्राम समझ में आया जो ट्रक वाला बनाया मैंने? यस सर। ओके, ऑल राइट। अभी एक काम करो, ये वाला पोर्शन देखो जो कॉमन आता है, दोनों डायग्राम्स में देखेंगे हम, लेकिन ये डायग्राम जो अभी मैं बता रहा हूँ ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये डायग्राम हमें एग्जाम में नहीं बनानी है। ये वाला पोर्शन देखो। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले पोर्शन में क्या क्या चीजें हैं? क्या ये वाले पोर्शन में बस है? यस। यस। क्या जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें ट्रक है? यस। ट्रक है। क्या उस वाले पोर्शन में कार है? यस। नहीं है? नहीं सर। कार नहीं है? है सर। बस के कार साथ है? हाँ सर है। यस, तो कार भी है। कार कैसे है समझ में आया सबको? क्योंकि बस के साथ, क्योंकि बस के अंदर जो बस के भी साथ है, यस वो कार एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कार है। ठीक है। तो इसीलिए जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये तीनों जो चीजें हमें हाईलाइट करता है कि ये ट्रक भी है, ये बस भी है और ये कार भी है। ये चीज अभी समझ में आई? यस सर। ओके, नाउ अभी मुझे सेकंड वाला कंक्लूजन बताओ कि सेकंड वाला कंक्लूजन का आंसर आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? एटलीस्ट सम ट्रक्स आर कार्स। यस सर, क्लियर। यस, एटलीस्ट सम ट्रक्स मतलब इतना तो, इतना जो ट्रक है वो कार भी तो है। यस सर। या यस, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आएगा। डोंट वरी, ऐसे में बहुत सारी अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे ट्रू आया, ये ऑप्शन 2 ये सबको पता चला। अभी भी डाउट है आप मुझसे फिर से पूछो, मैं फिर से बताऊंगा। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। अनिरुद्ध, निकिता, प्रतिभा, प्रियंका, सबको ओके? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से लगाएंगे ताकि क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको पता चला है कि नहीं पता चला है, मुझे पता चल जाएगा। चलो ठीक है, मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन है अपना आपको भेज दूंगा, आप सॉल्व ही करना। ठीक है, क्लास के बाद मैं आपको करके भेज दूंगा, आप सॉल्व करना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे आप मुझे क्वेश्चन पूछना, हम क्लास में ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो दैट कि मैक्सिमम 1 या मैक्सिमम 2 क्लासेस में ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड बिलीव मी, इसमें 5 मार्क्स स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील, इजीली स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें आते हैं। आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, अपना अपना डायग्राम बनाओ जो लिखा है एंड टेल मी कि आपको क्या लगता है, देन हम इस पे बात करते हैं, सो दैट कि आई नो कि वेदर आप समझे हो या नहीं समझे हो। 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम आपके पास। सब लोगों से आंसर चाहिए मुझे, कोई एक या दो से नहीं, सब लोगों से।
चलो ठीक है, पहला आंसर इज ये लोग बोल रहे हैं कि फॉल्स है, लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रू। अब अपना आंसर बताना मुझे, क्योंकि नेवर नो, मेजोरिटी पे मत जाना, मेजोरिटी पे बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं, ठीक है। सो लोग बोल रहे हैं कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ठीक है, लेट्स सी। सिर्फ 3 लोगों ने भेजा है मुझे, सबसे चाहिए मुझे। सौर्य आंसर? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो आराम से, करो करो, 1 मिनट फिर दे रहा हूँ, करो, ट्राई करते रहना चाहिए, कोई खाली मत बैठो। ठीक है, ओके। सो मैक्सिमम यही आ रहा है आंसर, राइट? सेकंड वाला ट्रू आ रहा है, फर्स्ट वाला फॉल्स आ रहा है। चलो ठीक है, लेट्स वेरीफाई। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो, जब मैं अभी करने जा रहा हूँ, यू प्लीज वेरीफाई एंड सी कि अगर क्या आप सही कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ठीक है। चलो, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, लेट्स सी। ऑल टेबल्स, ये हो गया हमारा टेबल, ये हो गया हमारा चेयर्स, ठीक है। ओके, मैक्सिमम लोगों के सही वही सेम आंसर आ रहे हैं, तो लेट्स सी। चलो, ये हो गया आपका टेबल, ये हो गया आपका चेयर। नो चेयर इज अ काउच, ओके। ठीक है, और देखना कि डायग्राम भी आपने ऐसे बनाया था या फिर कुछ और बनाया था। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट सम काउचेस आर चेयर। ये तो देख के ही बता देंगे कि नहीं, हो ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली, नो चेयर इज ए काउच बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो एटलीस्ट सम काउचेस आर चेयर, मतलब क्या समझे, राइट? पॉसिबल नहीं है वैसे। ठीक है, वेरी गुड, ये सबका फॉल्स आ गया, वेरी गुड, सबने किया है। नेक्स्ट इज नो टेबल इज अ काउच। अब देखते हैं नो टेबल इज ए काउच है कि नहीं। देखो, हाँ, नो टेबल इज अ काउच, लेट्स सी। देखो, ये जो टेबल है ये आता है आपका एंटायरली चेयर के अंडर आ जाता है। ये क्रॉस का मतलब है कि चेयर के अंदर जो भी चीजें हैं वो काउच के अंदर जा ही नहीं सकते, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। सो चेयर के अंदर जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो काउच में जा ही नहीं सकते। एक रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया, नो, नहीं जा सकते। तो क्या टेबल जो पूरा का पूरा टेबल है वो चेयर के अंदर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या पूरा का पूरा टेबल चेयर के अंदर है? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। तो इसीलिए टेबल भी काउच नहीं बन सकता। सो नो टेबल इज अ काउच इज ट्रू, यस राइट? ये समझ में आया? किसी ने अगर नो टेबल इज अ काउच किसी ने फॉल्स किया था तो अंडरस्टैंड दैट ये पूरा बाउंड्री, ये पूरा जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में जो भी है वो नहीं जा सकता। अगर मान लो ये ऐसे होता, अगर लेट्स से ऐसे होता, ठीक है, ये हो गया आपका काउच, ये हो गया आपका चेयर, ये हो गया आपका टेबल। अगर ऐसा सिचुएशन होता और बोलता कि नो टेबल इज अ काउच, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हमें ये वाला का पता होगा कि ये वाला जो टेबल और चेयर साथ में है ये नहीं जा सकते काउच में, लेकिन हमें इधर वाले का जो पोर्शन है टेबल का उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या पता ये हो सकता है काउच, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो पूरा का पूरा टेबल है वो चेयर के अंदर आ रहा है, तो अगर हम चेयर पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं दैट मीन्स कि वो टेबल पे भी लग जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अंदर है, ठीक है? समझ में आया? मतलब इसको देखो, चेयर को ट्रीट करो कि ये एक तालाब है, टेबल है, उसके अंदर मछलियां हैं, ठीक है, और ये है बाहर, मान लो कोई एक बाहर ये बंदर है, और यहाँ पे बोला गया है कि बंदर
पानी के अंदर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या बंदर और ये जो मछली क्या कभी मिलके कोई बाहर मूवी देखने जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि ये जो है ये मूवी नदी में जा ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने, राइट? कोविड रेस्ट्रिक्शन लगा था, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो वैसे ही नो का मतलब रेस्ट्रिक्शन है, हम उसको वायोलेट नहीं कर सकते। तो सिमिलरली आई एम होपिंग दैट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है ये वाले कॉन्सेप्ट में अभी? नो सर। नो, चलो ठीक है, विल डू जस्ट वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे एंड देन सी कि अगर आपको समझ में आया हो नहीं आया हो, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा। अगर गाइस प्लीज प्रैक्टिस करना, अगर प्रैक्टिस में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको मुझे पूछना पड़ेगा, अदरवाइज वो डाउट रह जाएगा। एक बार हम नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे, फिर वो बैकलॉग बनता जाएगा, फिर आपको फिर धीरे धीरे बुक करने से मजा नहीं आएगा, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे या फिर आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आज ही खत्म हुआ टॉपिक, आज ही जाके इसके क्वेश्चंस आप करो और जो भी डाउट है वो प्लीज आप मुझे पूछ लो। मैंने अपना मेल आईडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो आप उसमें मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। और ये जो फाइल है मैं क्लास के बाद आपको जैसे आपको सारे डिटेल्स मिलते हैं ई लर्निंग में, तो ये डिटेल भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, चलो डू इट। 3 स्टेटमेंट्स हैं इसमें, लेट्स सी। कौन सा? 3 स्टेटमेंट्स हैं। All calls are mails, some mails are posts, some posts are letters. ध्यान से बनाना, क्योंकि अगर आपने डायग्राम कैसे बनाना सीख लिए, उसमें कोई गलती आप नहीं करते हैं, उसके बाद ये क्लियर होने के बाद प्रॉब्ली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो उसमें शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, तब जाके मैं आपको वो शॉर्टकट बताऊंगा। नहीं, मुझे अभी यहां से ये ऑप्शंस में से बताओ, ए बी सी डी ई वाले ऑप्शन बताओ, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो एग्जाम में मार्क करने होंगे कंक्लूजन के बेसिस पे मार्क नहीं करने, आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई में से मार्क करने। यस, मुझे ऑप्शंस चाहिए। वेरी गुड, चलो ए आ रहा है ऑप्शन, किसी का ए आया, ठीक है, देखते हैं और क्या आता है। संदीप का बी आया, ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है। ये मत सोचो कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप गलत कर सकते हो, और गलत करोगे तो सीख जाओगे आपके पास, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी एग्जाम्स में नहीं होंगी। ठीक है, सो यहाँ पे गलती करना अलाउड है, तभी सीखोगे आप। ठीक है, बी, वेरी गुड, ओके, लेट्स सी, करो, डू इट, वेरी गुड। सोनाक्षी का डी आया, ओके, लेट्स सी। और क्या बचा है? बी, सी और ई बचा है, किसी का आया? लेट्स सी, ए, ओके, ए आया फिर से, ऑल राइट, ठीक है। और 2-3 लोगों का आंसर मुझे चाहिए फटाफट। कॉन्सेप्ट क्लियर लोगों, और उसमें विनीत ए, ओके, ऑल राइट, लेट्स सी, ठीक है। चलो, आई एम ग्लैड दैट कि आप लोग क्लासेस के साथ साथ आप सॉल्व भी कर रहे हो, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, लेट्स सी, अभी हम करते हैं, देखते हैं कि जो आपने बताया ए बी डी, इसके में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ए आर, ओके, लेट्स सी। ऑल कॉल्स आर मेल्स, ये हो गया मेरा कॉल्स, ये हो गया मेरा मेल्स, लेट्स सी, ये हो गया कॉल्स, ये हो गया मेरा मेल्स। ठीक है, नाउ सम मेल्स आर पोस्ट्स, ये हो गया मेरा पोस्ट। अब यहां पे लिखा है सम पोस्ट आर लेटर्स। अगर आपने जो मैंने अभी डायग्राम बनाया उसी हिसाब से अगर आपने डायग्राम बनाया है तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। लेट्स सी, ऐसे नहीं बनाया है,
ऐसे नहीं बनाया है, कैसे बनाया है? ये सी के एम के अंदर अगर सी डाल दिया तब टिल इट इज फाइन, बट अगर इसके अलावा कुछ और बनाया तो वो डायग्राम फिर गलत होगा, क्योंकि अगर आपने यस तो अगर ये डायग्राम बनाए तो आपका आंसर अभी वेरी गुड प्रतिभा, अगर आपने ऐसे बनाया तो। क्योंकि देखो आप ना बी यहाँ पे आपको क्यों करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कॉल्स और पोस्ट का जो रिलेशन है वो स्टेटमेंट में नहीं दिया है एग्जैक्टली, तो वो हमें नहीं बनाना है, जो दिया है सिर्फ वही बनाना है। ये वाला पोर्शन हमें पता है कि ये वाला पोर्शन बोला है कि कॉमन है, तो हमने कॉमन रख दिया। ये वाला पोर्शन का हमें पता ही नहीं कि ये है कि नहीं, क्या ये सी के साथ है, सी से बाहर है, सी के बाहर एम के अंदर है, हमें पता ही नहीं, दिस इज नॉट गिवन एट ऑल। सो हम इसको बाहर ही रखेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। सिमिलरली एल अगर मैं चाहता तो मैं यहां भी बना सकता था, लेकिन ये जो लेटर्स है, लेटर्स का सिर्फ रिलेशन पोस्ट के साथ गिवन है, राइट? तो मैं लेटर का आइदर मेल, यस, तो ठीक है। तो चलो अभी देख फाइंड आउट करते हैं। ऑल मेल्स आर कॉल्स, ऑल मेल्स आर कॉल्स, नहीं यार ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये तो हो गया हमारा गलत, ठीक है। अभी नो कॉल इज अ लेटर, यहां पे बोला गया है नो कॉल इज अ लेटर, मतलब ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक का ये रिलेशन है, लेकिन हमें ये कैसे पता यार, हमें तो पता ही नहीं है। ये जो ये यहाँ का जो ये रिलेशन, ये तो हमें पता ही नहीं है ना, ये इन तीनों रिजोल्यूशन से हमें कहाँ पता चल रहा है कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, नहीं पता ना हमें। बट सर सम मेल्स में तो पोस्ट्स आ रहा है सर, और सम पोस्ट में फिर लेटर्स भी आ रहे हैं। हाँ तो सर कॉल्स में लेटर नहीं आएगा, कॉल्स में लेटर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कॉल्स में ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सही है या गलत है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। नो कॉल इज अ पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर जैसे कि पॉसिबली लिखा होता, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे नो लिखा है, मतलब कि यहां से यहां तक कोई भी चांस ही नहीं है। क्या इन स्टेटमेंट से आपको लग रहा है कि ये चांस है ही नहीं? इन स्टेटमेंट से, हमें स्टेटमेंट देखना है, इन स्टेटमेंट से क्या यहाँ पे यहाँ तक जाने का चांस नहीं है, ऐसा कहीं पे लिखा है? कहीं पे कुछ भी हमें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि नो कॉल्स कैन बी अ लेटर? तो ये भी गलत है सर। तो हाँ बोलो सर, अगर हम पोस्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे बनाते फिर पोस्ट और कॉल्स को मिला के लेटर बना देते तो ये पॉसिबल होता? यस पॉसिबल होता, लेकिन क्या हमें पोस्ट और कॉल्स का जो रिलेशन है वो स्टेटमेंट में कहीं से पता चल रहा है? पोस्ट और कॉल का रिलेशन स्टेटमेंट से, हाँ सर पर जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें जहाँ पे डेफिनेटली आया था हमने उसी को गलत कंसिडर किया था, तो यहाँ पे भी अगर होता नो कॉल इज अ लेटर, नो कॉल इज मतलब डेफिनेटली वाला पार्ट होता तो ही फॉल्स होता, बट अभी तो इसमें डेफिनेटली वाला केस नहीं है। बट अगर इसको नो कॉल इज अ लेटर, ये डेफिनेटली है। यस नो मतलब नो, जैसे मैंने बोला है नो मतलब बिल्कुल नो, जैसे बोला था यहाँ से यहाँ तक कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी कि आप ट्रांसफर कर सको, कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए। लेकिन हाँ मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, सो कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि क्या ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? यस पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर यहाँ पे लिखा होता स्टेटमेंट दैट नो कॉल इज अ लेटर कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, देन ये सही होता। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अगर लिखा होता कि नो कॉल इज अ लेटर इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज तो हम इसको सही कर सकते थे। हाँ यू नो ऐसे 1000 केसेस हो सकते हैं, एक केस में पॉसिबल है कि नो कॉल इज अ लेटर, बट यहाँ पे लिखा है नो कॉल इज अ लेटर फुल स्टॉप, नो मैटर व्हाट, दिस इज एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे रहे हैं। बेसिकली मैं आपको एक और जस्ट एक 2 मिनट आपका लूंगा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं दैट इज सॉरी ऑल और या नो, ये होते हैं आपके यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स। यूनिवर्सल का स्पेलिंग भी गलत लिख दिया, सॉरी। यस
ठीक है। सो ऑल या जो नो वाले जो सारे स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं आपके यूनिवर्सल स्टेटमेंट। कैसे? नो डे इज अ नाइट, अगर ये मैं बोल देता हूं नो डे इज अ नाइट, मतलब कि ऐसा कोई दिन ही नहीं है जिसको मैं रात कंसिडर कर सकूं, फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। या फिर मैं ये बोल सकता हूं नो पाइनएप्पल इज अ फ्लावर, मतलब कोई भी पाइनएप्पल में ऐसा ढूंढ नहीं सकता हूं जो कि फ्लावर के कैटेगरी में आएगा, राइट। वो फ्रूट के कैटेगरी में आएगा, वो फ्लावर के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मैं एक्सेप्शंस को भी कंसिडर कर रहा हूं। यहां पे जब इसने बोला कि नो कॉल इज अ लेटर, दैट मीन्स कि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया। इसका मतलब कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कॉल और लेटर एक साथ हो जाए, लेकिन ये स्टेटमेंट से हम वो नहीं बता सकते हैं कि इन दोनों में ये क्रॉस वाला जो रिलेशन है हम इन 3 स्टेटमेंट से नहीं बता सकते हैं। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द कैच। ठीक है? यस सर। ठीक है, डोंट वरी, मैं काम करता हूं। ये जो, लेकिन मैंने जो डायग्राम बोला था, अगर आप लोगों ने डायग्राम एटलीस्ट ऐसे बनाया है तो एटलीस्ट योर 80% जॉब इज डन, बाकी 20% प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन अगर डायग्राम ऐसे नहीं बना है, दैट मीन्स कि यू नीड सम क्लैरिटी अगेन इन द बेसिक क्लैरिटी, आपको फिर से जरूरत होगी। एक काम करना, आई विल सेंड यू दिस क्वेश्चन जो इसमें है, मैं सारे आपको भेज दूंगा, आप सॉल्व करो। प्रॉब्लम हो रही है प्लीज लेट मी नो, सो दैट कि हम क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। यस सर। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट एट ऑल ये क्वेश्चन में या फिर डायग्राम्स में? यस सर, तो इसका कंक्लूजन ये होता कि कुछ तो कॉल सर लेटर है, तब ये यही होता है ना सर? किसका कंक्लूजन? इनमें से इसका ही सर, जो लास्ट है नो कॉल इज अ लेटर, तो अगर हम ट्रू देखें तो कुछ कॉल्स तो लेटर हैं। नहीं 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 नहीं, आपको कंक्लूजन से इन्फरेंस नहीं निकालना है, मैं जैसे बता रहा हूँ सर। हाँ सर ये हो सकता था। देखो मैं बताता हूँ। देखो, कंक्लूजन्स का मतलब है कि फिर वहां पे गुंजाइश की आपको जगह नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है। नो कॉल, अगर ये स्टेटमेंट होता कि नो कॉल इज अ लेटर इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, कि मे भी ऐसा कोई चांस आ जाए जब पॉसिबिलिटी हो, जब मान लो कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ठीक है, तो वो उसको हम ट्रू कह सकते हैं कि अगर कि राहुल गांधी, ऐसा एक दिन आएगा जब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। पॉसिबिलिटी के लिए तो है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, तो मुझे नहीं पता, राइट, मुझे नहीं पता कि वो बनेगा नहीं बनेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि वो कभी नहीं बनेगा तो वो मेरा स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो कभी ना कभी बन जाए, वो सही होगा। तो यहाँ पे जो नो वाला स्टेटमेंट आ गया है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। वो कंक्लूजन में पहुंच गए हैं, फाइनलाइज कर दिया है। तो हमें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, ये इंफॉर्मेशन से हमें कोई दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड आउट करना है कि क्या हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। हमारे पास बस इतना लेटर है, ये कंक्लूजन हम बता नहीं सकते, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, मैं ये भेज दूंगा आपको, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, you have my mail ID, or next class में whenever you will be there, we can discuss this and we'll continue. Yes. आपका मेल आईडी प्लीज एक बार बोल दीजिए ना, मैंने मेरा नोट नहीं मेल किया आईडी हुआ। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। अजीत, मेरा नाम है अजीत, AJIT, ठीक है, AJIT डॉट प्लूटर्स, PLUTUS@gmail.com। आपको क्लियर है मेरा मेल आईडी? ओके, ऑल यस सर, थैंक यू। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। यस।